Hello students, so we are back again now with the new chapter. So today we are going to study about polymers. अब अगर बात है कि polymers की तो आप अपने आसपास देखें क्या क्या polymers है. आप प्लास्टिक बैग्स देखें, they are polymers. Synthetic clothes देखें like nylon, they are polymers. अगर हम लोग बात करें किचन में टेफ्लॉन नॉन स्टिकी जो कुकवेयर्स होते हैं उसमें दैट इज पॉलीमर. सो पॉलीमर्स के बिना हम अपनी लाइफ को सोच नहीं सकते. आज ऐसा सिनेरियो है दैट यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर लाइफ विदाउट पॉलीमर्स. एवरीवेयर दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट फ्रॉम द स्विचेस, राइट टू द नॉन इंसुलेटिंग मटीरियल्स, टू द किचन्स, टू द मॉड्यूलर किचन्स, राइट. एवरीवेयर दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीमर्स, राइट. सो इट इज चैप्टर नंबर 15, पॉलीमर्स. नाउ जैसे ये टर्म पॉलीमर्स आता है, राइट, अब अगर क्लास 8 का बच्चा भी इस टर्म से अवेयर है, राइट, और क्लास 12 के बच्चे को भी ये पढ़ना पड़ता है, तो खुद सोचेंगे कि मैम ये टॉपिक तो हमने छोटी क्लास में सुना हुआ है पॉलीमर्स, तो अब हम क्या करने वाले हैं. अब हम लोग यहाँ पे इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ दीज पॉलीमर्स एंड हाउ दे आर फॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस एंड ऑल, राइट. सो पॉलीमर का डेफिनेशन दो आई एक्सपेक्ट दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट नो. पॉली मतलब होता है मेनी, right? It's a Greek word and mar मतलब होता है unit. So basically a polymer is formed by joining, right? It is formed by joining this your joining basic units, right? जिनको हम लोग बोलते हैं monomers. So polymer is formed by joining repeating structural units known as monomers. So mono मतलब होता है single and mer मतलब होता है यूनिट. तो सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर. लेट अस से दिस इज अ मोनोमर. अब इसी मोनोमर को मैं रिपीटेडली ज्वाइन करती रहूं, राइट, सिंगल मोनोमर बट रिपीटेडली ज्वाइनिंग इट. सो व्हाट आई एम गेटिंग अ पॉलीमर. So a polymer is formed by joining repeating structural units known as monomers, and these monomers they are basically derived from, right, ये कहाँ से derive होते हैं? They are derived from simple reactive molecules. So what are monomers? Monomers are simple reactive molecules. So let us study about the different types of polymers. उससे पहले एक टर्म हम लोगों को सुनने को मिलती है polymerization. So polymerization is basically the process. It is basically the process by which the polymers are formed from the monomers. It is a process of making polymers from the monomers. Now what are the different types of polymers? The next thing is types of polymers. Different types of polymers, that is the different classification of polymers. So basically polymers are classified on the basis of the first classification. अगर हम लोग देखें यहाँ पे, so it is on the basis of source. अगर हम लोग सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें कि पॉलीमर हमें किस सोर्स से मिल रहा है, सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स. नेचुरल, second one is semi synthetic, and the third one is synthetic polymers. Now नाम से ही बहुत क्लियर है, natural polymers, that means we are getting this polymers from plants or animals, right? So these polymers they are basically derived from plants, या फिर हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है. जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास में स्टार्च इज अ पॉलीमर. अगर हम बात करें प्रोटीन्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स. If we talk about nucleic acids like DNA, RNA, so nucleic acids are also your polymers. So we are getting them from plants or from animals. If we talk about, they're purely natural, right? इनका हमें कोई chemical treatment कुछ नहीं करना. If we talk about synthetic ones are man-made polymers which are made in the laboratory or industry में बन रहे हैं, right? फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं. They have no natural origin. प्योरली सिंथेटिक, प्योरली केमिकल. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग पॉलीथीन की, सो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जिनके पाइप्स एंड ऑल होते हैं, दे आर सिंथेटिक, दे आर कंप्लीटली मैन मेड,
right? But there is one more category here which I have written in between natural and synthetic. The reason is that they are semi-synthetic. तो origin is natural, but उसको हमें क्या करना पड़ता है? Chemically treat करना पड़ता है. We have to treat that natural polymer, right, chemically, and then we get this category of polymers which we call semi-synthetic. Semi means half synthetic, half is man-made and half natural. So semi-synthetic polymers का example आपके पास आएंगे rayon, right? इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं रबर, द वल्कनाइज्ड रबर. तो वल्कनाइज्ड रबर को हम लोग थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अबाउट वल्कनाइज्ड रबर. सो वल्कनाइज्ड रबर, रेयन, दैट एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक polymers. So after this classification which is based on the source, we have the second classification. The second classification is based on structure. So I hope you all have noted this down, rubbing this. So the next classification is based on structure. Second classification on structure. अब structure में कैसी classification होगी? Definitely कि polymer का structure कैसा है. पहले तो था कि polymer कहाँ से आया है. अब structure में बेस है कि polymer का structure कैसा है, polymer दिखता कैसा है, right? So structure के basis पे अगर हम लोग देखें, एक है हमारे पास में linear polymer. The second classification is branched polymer. The third classification is cross-linked polymers. So cross-linked polymers, right? Polymers. So linear polymers. अब linear का मतलब क्या होता है? Line, right? So linear polymers are like this, right? The straight chain. ऐसे straight chain polymers है, एक तो नहीं, बहुत सारे आपके पास में क्या है? Units है. So they are straight chain polymers, right? They are linear chain. कोई branching नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Since they are linear, so their packing is very good, right? Linear polymers की क्या होती है? Packing बहुत अच्छी होती है. So they are very well packed. So since they are very well packed, they have very high density. इनकी density बहुत ज्यादा होती है. इनकी tensile strength बहुत ज्यादा होती है. Tensile strength मतलब the pulling strength कि आप इन्हें जितना खींचोगे ये इजीली ब्रेक नहीं करेंगे. तो दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट? इनमें एग्जांपल्स में आप लोग कैसे याद कर सकते हो लीनियर पॉलीमर्स का? एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, राइट? हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर लीनियर पॉलीमर. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है. वाई? बिकॉज द पॉलीमर इज लीनियर, सो द पैकिंग इज गुड. Next category is branch polymers. Now in case of branch polymers, आपके पास में chains are linear, but they are having branches. इस तरीके से देख रहे हो, कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेंगी? Branches मिलेंगी. So this is the example of branch polymers. So there are some branches, but the polymer is linear, having some branches. So ये branches होने की वजह से आपके पास में क्या होगा? The packing will not be that good as linear polymers. So they are basically less dense, right? इनका density क्या होता है? They are less dense than linear polymers. Okay, linear polymers से क्या होगा? इनकी density कम होगी. इसका example आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? Example will be your low density polythene, right? So ये note कर लो. Branch polymers, the example is low density polythene. And this linear polymer, the example is high density polythene. Next example is your cross-linked polymers. So cross-linked polymers क्या होते हैं? Now cross-linked polymers में क्या होगा? ये एक polymer linear chain है, ये दूसरी linear chain, ये तीसरी linear chain, ये fourth linear chain. Now it is linked to this one. ये दूसरे वाले से लिंक है, ये अपने थर्ड वाले से लिंक है. So here you will find that there are cross links. Right? The linear chains are linked to each other. ये इससे linked है, ये इससे linked है. So there is cross linking. Right? This cross linking is basically due to the presence of bifunctional. Right? You will see it is due to the presence of bifunctional. मतलब दो functional group और trifunctional. Right? Trifunctional monomers. अगर मोनोमर में क्या है, जो आपके पास सिंगल यूनिट है मोनोमर, if the monomer possess two functional groups or three functional groups, in that case there is chances कि क्या हो जाए, एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ में क्रॉस लिंक हो सकती है. So this results in the formation of cross-linked monomers. Now cross-linked polymers. Now cross-linked polymers, if you see,
they are example is bakelite, melamine. So they are the examples of cross-linked polymers. So after the three types of polymers, we will next see the third classification. So the third classification is, so shall I rub this? You please see this and then tell me. Rub. Third classification is based on the intermolecular forces of attraction. Now polymer की जो application है in the various industries, वो बेसिकली डिपेंड करती है पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे कि पॉलीमर की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, राइट। अब मुझे पॉलीमर का यूज जिस भी एरिया में करना है तो पहले मैं देखूंगी ना इस पॉलीमर की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, तभी तो मैं चेक करूंगी वेदर द पॉलीमर इज फिट टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो उसकी हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखती है। कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की पॉलीमर की कितनी पुलिंग पावर है, राइट। पॉलीमर की टफनेस, कितना टफ पॉलीमर है, राइट। उसकी इलास्टिसिटी की कितना ज्यादा इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी। सो दे आर द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स विच डिसाइड कि कैसे हम उसको अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। नाउ दीज प्रॉपर्टीज, दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर, they are basically dependent upon the intermolecular forces of attraction. कि whether there is van der Waals forces or there is hydrogen bonding, what kind of forces of attraction is present in the polymer chain. So this is very important. So this classification is based on the intermolecular forces of attraction. So intermolecular forces of attraction के basis पे हमने polymers को देखा that they are of 4 type. First type हमारे पास में आता है elastomers, right? First type हमारे पास में आता है इलास्टोमर्स। ना इलास्टोमर्स सेकेंड टाइप हमारे पास में आता है फाइबर्स। थर्ड हमारे पास में आता है थर्मोप्लास्टिक। और जो फोर्थ हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। So the first type of polymers under this category is elastomers. So elastomers are basically solids, right? They are rubber-like solids with elastic properties. इनमें कैसी properties होती है? Elastic properties. That means we can stretch them. Since we are able to stretch them, that means इनके बीच में कैसे forces हैं? Weakest intermolecular forces of attraction. तो इनके बीच में कैसे forces of attraction है? Intermolecular forces of attraction बहुत वीक है, तभी तो हम इन्हें आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं। बट इन पॉलीमर्स के अंदर क्या रहता है? देयर आर फ्यू क्रॉस लिंक्स ऑल्सो, राइट। तो जो थोड़े बहुत क्रॉस लिंक्स है पॉलीमर के अंदर, ये पॉलीमर है, इसमें बीच में क्या है? थोड़े बहुत क्रॉस लिंक्स है। अब इन क्रॉस लिंक्स का क्या काम है? ये क्रॉस लिंक्स जो है दे बेसिकली हेल्प कि जैसे ही मैंने लिया एक रबर एंड आई स्ट्रेच्ड इट, राइट। अब जैसे ही मैं अपना वो स्ट्रेचिंग फोर्स रिलीज करूंगी द पॉलीमर हैज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, राइट। सो दे पॉलीमर्स में जो ये क्रॉस लिंक्स होते हैं इलास्टोमर्स में, दे बेसिकली हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, राइट। सो इलास्टोमर्स, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन में आता है। आपको 4 पॉलीमर देके बोलेंगे अरेंज करो इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो आपको ध्यान रखना है कि इस 4 में से इलास्टोमर्स आर एट द बॉटम, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। आफ्टर इलास्टोमर्स अगर हम लोग देखें, हमारे पास इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ रबर, जैसे आपके पास में नेचुरल रबर, राइट, नेचुरल रबर। इसके अलावा हमारे पास और रबर्स क्या है? ब्यूना, जहाँ पे भी ये ब्यूना दिखे मतलब रबर है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ब्यूना एस क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, अभी के लिए सब पढ़ लेते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, they will fall under the category of elastomers. Now after elastomers, the second category of polymers जो हमारे पास आते हैं in this category is fibers. Now fibers क्या होते हैं? अब fibers क्या होता है? फाइबर बताओ, थ्रेड, राइट। सो फाइबर्स हमारे पास में क्या होते हैं? दे आर बेसिकली थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। ये हैं तो सॉलिड्स, लेकिन ये थ्रेड की तरह है। अब ये जो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स है, इनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है दैट दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, आसानी से टूटेंगे नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग
फाइबर्स है, राइट। एंड ये जो फाइबर्स होते हैं क्योंकि दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो बात तो दिमाग में आ गई होगी कि मैम इनका तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, राइट। जनरली कौन से बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हर तरीके का पॉलीएमाइड आएगा। अभी पॉलीएमाइड पूरी कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे दूं, नायलॉन। नायलॉन फाइबर आपको पता है बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ओनली पैराशूट्स में इसको यूज किया जाता है, राइट। और आपके पास इसके बहुत सारे और वेरियस यूजेस आप ध्यान रख सकते हैं। सो पॉलीएमाइड्स, नायलॉन 6, ये नायलॉन 6, तो बोल दो ये क्या बना है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो पॉलीएमाइड्स के अलावा ऑल द पॉलीएस्टर्स, राइट, पॉलीएस्टर्स लाइक डेक्रोन, इसको सीधी और साफ भाषा में टेरिलिन भी बोलते हैं, इज ऑल्सो अ फाइबर, राइट। तो दीज आर गोइंग टू फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स में क्या होता है, दिस इज अ थ्रेड लाइक, तो इनके बीच इनकी जो पैकिंग होती है ना फाइबर्स की, इट्स वेरी गुड, राइट। बहुत अच्छी पैकिंग होती है इन फाइबर्स की, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स देम अ क्रिस्टलाइन feature also. So they are basically crystalline in nature, right? Fibers are crystalline in nature. So the next category is, just note it down. So the next category is your thermoplastic. Now thermoplastic क्या होता है, अभी thermoplastic तो बचपन में पढ़ा था, है ना, भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो thermoplastic, right? थर्मो मतलब हीट। तो ये जो प्लास्टिक होता है बेसिकली, ये प्लास्टिक्स को जैसे हम हीट करेंगे दे विल बिकम वेरी सॉफ्ट, राइट। एंड द मोमेंट दे बिकम सॉफ्ट, हम इनको जो हमारे डिजायर्ड शेप है, पेन इस मार्कर का शेप है तो मार्कर का शेप दे दो, आपको सर्कल देना है तो सर्कल दे दो, जो शेप आपको इनको देना है, राइट। टॉय का शेप देना है, इसको रिंग का शेप दे रहा है, जो भी शेप आप इसको देना चाहते हो यू कैन गिव इट एंड देन कीप इट फॉर कूलिंग। वंस इट दे विल बिकम कूल, वो हार्ड हो जाएंगे एंड देन desired shape. So basically thermoplastics are the kind of plastics जिनको हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं. They can be remolded, they can be given any shape, whatever is your desired shape, you can give that shape to this kind of polymers. So these polymers basically they become soft on heating. जैसे ही हम इन्हें हीट करेंगे ये polymers हो जाएंगे soft. Soft होने के बाद में we can give them any shape and they becomes hard on cooling, right? So these polymers they become soft on heating and hard on cooling. As a result, we can give them desired shape. तो जो भी desired shape देनी है वो दे सकते हैं. इसी property की वजह से they can be remolded. जिनको बार बार अलग अलग शेप आप दे सकते हो, राइट. सो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, so polyvinyl chloride PVC, polyvinyl chloride, they are the example of your thermoplastic, right? So thermoplastic में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगा thermosetting plastic. So thermosetting plastics में चलते हैं. Shall I wrap this? So next category is thermosetting plastics. Now thermo सेट हो गया है एक बार, तो क्या दोबारा चेंज होगा हीट करने पे? नहीं होगा, राइट. सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एक बार आपने हीट किया तो ये ऐसा सेट हो जाएगा, एक तरीके से इनफ्यूजिबल मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कि यू कैन नॉट चेंज इट शेप अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट, राइट. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं दे आर हेवीली क्रॉस लिंक्ड. इनके अंदर इतनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है कि अगर हम लोग इनको एक बार बना ले तो वी कैन नॉट चेंज इट शेप अगेन एंड अगेन. इफ यू ट्राई टू हीट देम दे विल कन्वर्ट इनटू इनफ्यूजिबल, यू नो, इनका कुछ नहीं होने वाला, राइट. सो दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड, इनको रीमोल्ड हम नहीं कर सकते हैं, राइट. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो एग्जाम्पल इसके हम लोग देखेंगे बेकेलाइट, मेलामाइन, they are thermosetting plastics, right? So thermosetting plastics में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? We have to keep in mind that they are heavily branched, right? They are cross-linked, and because of the cross-linking, if we heat these polymers, they are not going to become soft. They will convert into a
इनफ्यूजिबल मास, राइट। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि किस तरीके के पॉलीमराइजेशन हम उनका कर रहे हैं। हमारे पास टू टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर्स। सो अंडर दिस कैटेगरी फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर्स। नाउ एडिशन पॉलीमर्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं? सी, एडिशन रिएक्शंस आर शोन बाय unsaturated compounds containing double bond or triple bond. So basically addition polymers वो polymers होते हैं which are formed from the monomers which contains either double bond or triple bond, right? So they are basically formed, these addition polymers, they are basically formed by joining. You have to joining the monomers possessing either double और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सो एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे, पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, राइट। सो अगर हम लोग देखिए बात करें यहाँ पे पॉलीथीन की, सो पॉली मतलब तो है मेनी, पॉली मतलब क्या है? मेनी, एंड दिस इज थीन लग रहा है बट इट्स एक्चुअली इथीन, राइट। पॉली प्लस इथीन इज पॉलीथीन। सो पॉलीथीन मतलब मेनी इथीन, right? So when many ethenes, n number of ethene molecules are combining together, they are giving rise to this polythene, which is a polymer. So ये आपके CH2 double bond CH2, then n number of ethene molecules are combining together, right? Then it is giving rise to CH2 single bond CH2. Why single bond? Because अब ये CH2 किसी और इथीन मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, ये CH2 अपने आगे वाले इथीन मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। सो वी कैन नॉट राइट द फुल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो पूरा चेन नहीं लिख सकते। सो वी विल शॉर्टन इट इन दिस वे दैट दिस CH2, ये बॉन्ड बीच का जो डबल बॉन्ड है दैट इज गेटिंग, ये हम ब्रेक कर रहे हैं। This CH2 is getting attached to the next carbon of the next molecule. ये कार्बन जो है नेक्स्ट इथीन मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ कंबाइन होगा, एंड हियर वी हैव टू राइट N. This N means how many molecules of ethene are here? N molecules of ethene are here. So this is polythene, right? Which is formed by the addition polymerization. एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC. Now polyvinyl chloride, तो vinyl chloride is CH2 double bond CH, this is vinyl, and chloride अगर है तो Cl हम लोग लगाएंगे। Now when n number of vinyl chlorides are combining, they are going to form CH2 डबल की जगह आपको सिंगल करना है, ट्रिपल की जगह डबल करना है, मतलब एक बॉन्ड तो आपका ब्रेक हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, एक स्पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स जनरेट होंगे। सो वी हैव टू ब्रेक द स्पाई बॉन्ड हियर, CH Cl, and this CH will definitely get attached to the carbon of the next PVC. And N you will write here. N means ये जो यूनिट है, this is the basic monomeric unit, और यही यूनिट क्या हो रही है, पूरी पॉलीमर चेन में रिपीट हो रही है, right? This is the basic unit which is getting repeated throughout the polymer. So these are the example of your addition polymers. So addition polymers are formed by joining monomers which possess either double bond और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। डबल या ट्रिपल होना मस्ट है। सिंगल बॉन्ड वाला मोनोमर जो है दैट इज नॉट गोइंग टू शो एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो आई होप इट इज क्लियर। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू शो दिस काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन। वी विल डिस्कस मेनी मोर एग्जांपल्स but after some time. So I hope this is clear. So I'm rubbing this. The next category of polymers is under the same category, that is on the basis of mode of polymerization, is condensation polymers. So condensation polymers, they are formed by repeated condensation reaction between bifunctional और trifunctional मोनोमर्स। सो अगर मोनोमर्स में क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, सो वहां पे चांसेस क्या हो सकता है दैट देयर कैन बी रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड इन दिस कंडेंसेशन रिएक्शन देयर कुड बी एलिमिनेशन ऑफ
राइट, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके पास किन का एलिमिनेशन हो सकता है, आपके वाटर का, HCl, इथेनॉल, etc. So there could be elimination of small molecules like HCl, water or ethanol. So here एक चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा मोनोमर है उसमें आइदर 2 या फिर 3, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए. दिस इज मस्ट, राइट. सो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. हम लोग नायलॉन 6,6 का एग्जाम्पल लेते हैं. सो नायलॉन 6,6 इज बेसिकली अ पॉलीमर, राइट. अब जस्ट टोल्ड यू थोड़ा सा देर पहले फाइबर से बताया था. इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीएमाइड्स. सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ नायलॉन 6,6, इट इज अ पॉलीमर ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड. सो अगर हम बात करें यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मतलब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन व्हेन कंबाइंड विद एडिपिक एसिड इट फॉर्म्स बेसिकली नायलॉन 6,6. नाउ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन क्या है? मिथाइलिन है CH2 6, राइट. हेक्सामिथाइलिन NH2 हम यहाँ पे देख लेते हैं, NH2 हम यहाँ देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डाइअमीन. एडिपिक एसिड इज बेसिकली 6 कार्बन एसिड, जिसमें कि हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप होते हैं 4 एंड 2 हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं. सो दीज मोनोमर्स आर बेसिकली बाइफंक्शनल हियर. यू कैन सी दिस मोनोमर इज बाइफंक्शनल, 2 फंक्शनल ग्रुप्स. दिस मोनोमर इज ऑल्सो बाइफंक्शनल. नाउ व्हेन दीज 2 कंबाइन, यहाँ पे NH2 का H और COOH का OH, राइट. ये OH और H, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास में? इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, NH2 इन दिस वे लिख देती हूँ, राइट, ताकि थोड़ा सा क्लियर है. NH2 के 2 हाइड्रोजन शो कर देते हो. सो ये हाइड्रोजन ऑफ NH2 कंबाइंस विद OH हियर, और क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन दिस NH एंड CO. इफ देयर आर N यूनिट्स of hexamethylene diamine which is combining with N units of adipic acid, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे? N, राइट. उसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन भी रिमूव होगा नाइट्रोजन का, राइट. यहाँ से इस COH का ये OH भी रिमूव होगा, डेफिनेटली कंबाइन विद द अदर हेक्सामिथाइलिन डाइमीन ग्रुप. सो यू आर गोइंग टू गेट नायलॉन 6,6 पॉलीमर इन दिस वे. NH here, right, NH here, then CH2 6, then here NH, C double bond O, then C double bond O, CH2 4, C double bond O, and then definitely it will combine with the other NH here. So this is nylon 6,6. So this linkage is called an amide linkage. इसको हम बोलते हैं amide linkage. That happens, ये linkage तो यहाँ पे repeat होने वाली है. So इसको हम क्या बोलते हैं? nylon 6,6 को we call it a polyamide, right? This falls into the category of polyamides, and all polyamides are fibers. ओके, तो थोड़ा सा हम लोग को सारी चीजें ध्यान में रखनी है. These are the example of condensation polymers. Other example are polyesters also, so that we'll discuss in the next class. So here we are ending with the classification of polymers.